Good morning, Mohit. Mohit, good morning. Hi, Very good morning. Good morning, Good ma'am. morning, Vijay sir. Good Wondering morning, if ma'am. I'm audible, Arre visible. wow. Good morning, ma'am. Good Morning, ma'am. morning. Good morning. Ma'am. Dipti, Very I So love good your to see you t-shirt. today. Huh? Dipti, your t-shirt is very good. I love this smiley wala t-shirt. This one? Yeah. I'll tell you something about it later. Okay. Very, very good. जब Yes. पहनती है तो मुझे So बहुत अच्छा cute. लगता है. Good morning. Yellow Very and good black morning. stripe. So today we are starting with affirmations from Reena. Yes, ma'am. May I Yes. start? Huh? Okay, ma'am. So I'll just mute myself and I'll also close my eyes and do them. Yes. I will not take more than 5 minutes, ma'am. So good morning, everyone. Today I'm going to read out few affirmations, that is positive self-talk for all of us to start our day on a positive note. So I request everyone to please sit comfortably with spine straight and eyes closed. Take a deep, long breath and keep your mind cool and calm. If possible, please speak affirmations out loud and focus on listening each word as you speak. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस लें और अपना मन शांत रखें। अगर पॉसिबल हो, अफर्मेशंस को जोर से बोलें और साथ ही साथ अपने हर एक बोले हुए शब्द को ध्यान से सुनें। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। I am grateful for everything I have in my life. I can be whatever I want to be. I am not defined by my past. I am driven by my future. I am in control of how I react to others. My only job is to learn and grow. It does not matter if I make a mistake. I am totally in love with life. I am happy for myself and I am doing well. I am a confident and victorious person. I am rising above every obstacle. I am taking very good care of my health. I am strong and courageous. I am a money magnet. I attract money effortlessly. I achieve all my goals with ease. I am in full alignment with universal energies. I am getting better and better day by day.
Amen. That's it. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Reena. you. Thank you, It Reena. was awesome. You. Thank you. Thank you. It was very nice. Very nicely, slowly, पूरा words Yeah. catch हो रहा था. Beautiful. Thank you so Beautiful. much, Reena. Thank you. Thank you. And I My love all the pleasure. instruction manual also that you had given before starting the affirmation. That was so sweet. Yeah, that's very sweet. जो जिन जिन की भी पीठ सीधी नहीं थी उनको बोल रहा आप दोबारा से सबके कैमरा ऑन होना चाहिए. Okay, so we'll start with our next journey. So we are on a journey to realize our dream list basically. मतलब ये जितने भी हमने chapter 13 के बाद से जितने भी हम chapters कर रहे हैं वो सारे हमें, क्योंकि हमने सबसे पहले डे 13 में अपनी ड्रीम लिस्ट को लिखा था, उसको बहुत अच्छे से विविडली अच्छे से चॉक आउट किया था जो हमारे टॉप 10 डिजायर लिस्ट है. उसके बाद हम सारी वो चीजें कर रहे हैं जो हमारी ड्रीम लिस्ट को हमारे पास जल्दी लेके आएगी. और जितने भी जहां पे भी मतलब एक पूरा लाइफ कहते हैं ना एक कैनवस की तरह है, तो उस कैनवस के ऊपर जहां जहां पे भी ब्लैक स्पॉट्स लगे हुए हैं ना जिसकी वजह से हमको ठीक से नहीं दिख रहा है, मतलब उस पेंटिंग में थोड़े थोड़े एरर्स है, उन सारे एरर्स को हम मिटा रहे हैं सो दैट वो ड्रीम लिस्ट, क्योंकि वो ड्रीम लिस्ट उसके पार है, वो अगर देखनी है हमको एक्सपीरियंस करनी है तो हमें वो सारे एरर्स हटाने होंगे. तो उसी का हमने पहला अपना प्रैक्टिस किया था हैव अ मैजिकल डे की जो यूनिट होती है लाइफ की एक इकाई, उसको हमने बिल्कुल ठीक कर दिया था, है ना. तो रोज का दिन डिजाइन करके अपने हिसाब से. उसके बाद डे 15 में कल हमने किया था रिलेशनशिप्स के बारे में, हील माय रिलेशनशिप, बिकॉज जब तक हमारे अंदर किसी भी एक इंसान जो धरती पर है उसके अगेंस्ट हमको हेट्रेड है, एंगर है, ग्रज है अगर उससे, तो हमारी सपनों की दुनिया हमारे पास नहीं आ सकती. उसमें 100% हमको फ्लॉलेस होना पड़ेगा. तो इसलिए वो ये नहीं था कि उस जो जितने भी रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, इट्स नॉट दैट उनको हमारी जिंदगी में वापस आने की जरूरत है. प्रिया ने ये चीज कल बताई थी ना, इट्स नॉट दैट उनको अभी जिंदगी में आने की जरूरत है हमारे पास, इट्स नॉट दैट. इट इज बस हमारे अंदर जब हम उनके बारे में सोचें तो हमारे अंदर ग्रज नहीं होनी चाहिए कि देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, या मेरे डैड ने मेरे साथ ऐसे किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और वो क्यों मुझे छोड़ के चले गए इतने साल पहले, मेरा भाई ऐसा क्यों है उसके साथ, मेरी भाभी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो ऐसे करती है वैसे करती है, मेरे माँ बाप को परेशान करती है, उनका ध्यान नहीं रखती है ना, इस तरह से. तो अगर हमारे अंदर वो ग्रज है, इसका मतलब है कि हम लाइफ को फुल स्विंग में, जिस तरह से कहते हैं ना, लाइफ वर्ड नहीं है हमारे अंदर, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो हमारी ड्रीम हमारे पास नहीं आएंगी. इसीलिए ये इतनी स्पेशलाइज्ड वे से ये चैप्टर्स डिजाइंड है कि दे विल ब्रिंग आवर ड्रीम्स टू अस प्रोवाइडेड वी बिकम अ मच बेटर पर्सन. तो इसलिए सबसे पहले वाला था हमने वो कर लिया. कल वाला रिलेशनशिप्स. अगर आपकी जिंदगी में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेके आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है या आपको कंप्लेन होती है, तो उन तीनों के लिए लगातार करो, लगातार 3 दिन हील माय प्रैक्टिस करो, वाइल एट द सेम टाइम आज वाली भी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो आप 2 प्रैक्टिसेस कर सकते हो. सो दैट्स लाइक इसी तरह से हमको. सो इस तरह आज का है हमारा हेल्थ के बारे में कि अपनी ऑब्वियसली मतलब अगर आप अपने ड्रीम की जर्नी में हो कि आपको बहुत सुंदर जिंदगी चाहिए और ऐसे में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, कुछ हो रहा है, आप कैसे अपनी सपनों की दुनिया के बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना. तो हम उस कांटे को ही हटा देंगे अपनी जिंदगी से आज, है ना, जिस तरह से इसमें. तो आज वाला जो हमारा चैप्टर है इज कॉल्ड मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, जादू और चमत्कार सेहत की दुनिया में. तो सेहत में जादू और चमत्कार अगर हमको देखने, जादू तो देखने ही है, जादू से भी बड़ा चमत्कार होता है ना. चमत्कार मतलब फटाक से हो जाता है, दैट मीन्स टाइम लैग नहीं होता उसमें. ठीक है, फटाक से हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट इज. सो यही आज का हमारा चैप्टर है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. एंड आई जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन. और बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये वाला. मतलब अगर हमने इसको अच्छे से किया और रोज किया, अगर कई बार हमारी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो क्रॉनिक होती है, तो अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है आपको बहुत टाइम से, कोई पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम, तो हमको ये वाला चैप्टर रोज करने की जरूरत है और उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से आप आज करोगे. सो इसमें जो इमेज है उसमें लिखा हुआ है मैजिक एलिक्सिर. इसका मतलब होता है वो जादुई तत्व जो अमृत की तरह काम करता है हमारी बॉडी में. हमको पता है कि अगर हमारी बहुत तबीयत खराब है
और कोई हमको इतना सा ना एक ढक्कन में पानी पिला दे और बोले कि ये अमृत है, इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और आपके हर एक सेल दोबारा से मतलब एकदम से जाग उठेगा, कोई प्रॉब्लम पेन है कहीं पे वो चला जाएगा। सो आज का जो चैप्टर है वो एक्चुअली मैजिक एलिक्सर है, मतलब वो मैजिक पोर्शन है, अमृत है, अमृत है, हर चीज को हम अमृत, अपनी जिंदगी को अमृत बना लेंगे। तो इसमें देखो काली बॉटल पड़ी है, सफेद बॉटल पड़ी है, काली बॉटल में जहर होगा इस तरह से, सफेद बॉटल में पानी है, जो भी है मतलब इसको अमृत बना के हम कंज्यूम करेंगे। और वो क्या अमृत है? ग्रैटिट्यूड वो अमृत है। ठीक है, सो आज हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये चैप्टर डिजाइंड है। ऐसा नहीं है कि अपनी हेल्थ के लिए बस ब्लेसिंग लिखनी है, इट इज मच मोर देन दैट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मोहित जी, आज 5 तारीख हो गई आपकी, हमें याद था कि आप आज पढ़ रहे हैं। Yes, ma'am. Thank you. Yes. Day 16, Magic and Miracles in Health. Quote, miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Unquote, Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Full stop. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feeling about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about, and so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. 1 second, Mohit ji, we'll just take a pause here and reiterate यहाँ पे, मतलब हम में से में भी कई लोगों को पता नहीं है, तो ये ये चैप्टर इज सो मच देयर बिकॉज मैं खुद ही एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि बॉडी की जो अपनी नेचुरल हीलिंग पावर है उसको एक्टिवेट करना है हमको, और वो एक्टिवेट नहीं होगी जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं।
आई मीन लाइक एट लेंथ और डिटेल में लोग अपनी बीमारी के बाद, उसके बाद ये हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला, फिर उन्होंने मेरे पैर को दबाया, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अगर हम इस तरह से अपनी स्टोरी, हम एक तरफ ये पढ़ रहे हैं कि चेंज योर स्टोरी एंड चेंज योर लाइफ, है ना, जो टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, चेंज योर स्टोरी एंड चेंज योर लाइफ, और दूसरी तरफ हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत इलैबोरेट करके, ढेर सारी एनर्जी दे दे के उसको बार बार 5 लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो सामने आ रहा है उसको, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हेल्थ में दिक्कत है, फोन पे बात कर रहे हैं तो हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हेल्थ को लेके नेगेटिव माइंडसेट है पूरे टाइम, और वो इतना ज्यादा हम उसको ओवर, मतलब वो हम पे ओवर पावर कर लेता है दैट हेल्थ इश्यू, दैट वो कैसे ठीक होगा। अब बॉडी की अपनी बहुत ही प्रोफाउंड इंटेलिजेंस होती है, और वो मशीन की तरह चलती है, हमें पता भी नहीं होता है कैसे, मतलब छोटी छोटी चीजें, हीलिंग, रिपेयरिंग, जो भी होता है, जब कभी भूख नहीं लग रही है उस वक्त मत खाओ, बिकॉज वो बॉडी का साइन होता है, क्योंकि डाइजेशन में बहुत ज्यादा कैलोरीज खर्च होती है। तो इसलिए कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से साइन देती है कि हंगर नहीं है, भूख नहीं लग रही है आज, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब होता है कि बॉडी को डाइजेशन की जो कैलोरीज हैं वो सेव करके उन कैलोरी को आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। जब भी कोई एंटीबॉडीज किसी बीमारी के अगेंस्ट बनती हैं, जो भी बाहर से एंटीजन आता है, चाहे वो कोई वायरस हो, डायरिया का वायरस हो जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया है, या कोई ऐसा वायरस हो जिसकी वजह से कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है, जो नॉर्मल सीजनल फ्लूज होते हैं, या फिर आपने कुछ गलत खा लिया है और पेट में उसकी वजह से चर्निंग हो रही है और आपकी भूख मर गई है, वो साइन होता है बॉडी का कि खाना मत खाओ, क्योंकि डाइजेशन में बहुत ज्यादा बॉडी थक जाती है। डाइजेशन के बाद हमने देखा है ना, कई बार खाना खा के दोपहर को हमको नींद आ जाती है, वो नींद इसीलिए आती है कि बॉडी की सारी कैलोरीज जो उस वक्त होती हैं, ठीक है, वो सारी डाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज हो रही होती है, तो आपको इतना थकान हो जाती है कि आप सो जाते हो, है ना। सो वो कैलोरीज को सेव करके, मतलब जो भी एनर्जी है जो डाइजेशन में होती है उसको सेव करके आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उस एंटीजन वायरस के अगेंस्ट, जो भी बाहर से आया है, जो भी इन्फेक्शन आपको बाहर से आया है, उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जब बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए भूख मरती है। तो बॉडी का क्यू को फॉलो करो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, हड्डी हमारी टूटती है तो हमारी बॉडी एकदम से उसको जोड़ने में लग जाती है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉडी में अपने आप होती हैं, हमको कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर कहीं चोट, अंदर इतने सारे हेमरेजेस होते हैं एक दिन में, मतलब हमारी जो ब्लड कैपिलरीज और वेन्स होती हैं बहुत पतली होती है, मतलब जो सुई होती है ना जिससे हम बटन लगाते हैं, उस सुई से भी बहुत ज्यादा पतली होती है, माइक्रो कैपिलरीज बोलते हैं उनको। अब उनमें कई बार ऐसा कुछ होता रहता है हमारी बॉडी में कि जिससे वहां पे छोटे छोटे हेमरेजेस, मतलब वो बर्स्ट हो जाती हैं, अपने आप बर्स्ट होती हैं, अपने आप ठीक होती हैं, अपने आप आपके सेल बॉडी के जो पुराने होते हैं वो मतलब पुराने होके खत्म हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, उसकी जगह नए सेल बन जाते हैं। कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी उसे डील कर लेती है, पेट में खाना आ रहा है, अगर इन्फेक्टेड खाना है तो अपने आप आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, बॉडी अपने आप उसको रिगर्जिटेट करा देती है, या फिर अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन चला गया है तो डायरिया हो जाता है। इस तरह से रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बॉडी का अपना खुद का काम होता है, वो हमको बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करना होता, हाँ बस हमको सपोर्ट देना होता है। क्या आप खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, जो इसमें लिखा हुआ है ना, बॉडीली केयर एंड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि बॉडी इनेबल रहे, है ना। जैसे अगर कार भी है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, आज से 5 साल के बाद उसके कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है या फिर कार्बन जमा हो जाता है ना, उसको सर्विसिंग पे देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो सर्विसिंग से वापस ठीक होके आती है। लेकिन उसमें लगातार आप पेट्रोल डालते रहो, सर्विसिंग कराओगे, गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। इस तरह से हमारी बॉडी को भी हमको सर्विसिंग करनी पड़ती है, और सर्विसिंग होती ही फूड, वाटर, लाइफस्टाइल और आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ से, है ना। बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली, अगर हम दिमाग में कुछ चल रहा है तो हमने बहुत बचपन में सुना था ना, चिंता चिता के बराबर होती है। चिंता की
वरी कर रहे हो लगातार, अपने आप बॉडी में उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और सारी बीमारियां जो आजकल होती हैं वो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। ठीक है, थोड़ी सी साइंस मैं आपको इसमें बता रही हूँ क्योंकि हमको हर चीज का वो पता होना चाहिए सिस्टम। तो अगर आप बहुत किसी चीज के बारे में वरी कर रहे हो, ठीक है, वरी कर करके आपकी बॉडी का केमिकल ऐसा हो जाता है, बायोकेमिकली आप बहुत एसिडिक हो जाते हो और सारे वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो हमको बीमार करते हैं, और हमको इन्फ्लेमेशन होगी और हमको बीमारियां होंगी। तो इसीलिए बॉडीली केयर, खाना पीना ठीक है, मस्ती करो, आपको बाहर खाना है, आपको पिज्जा खाना है, जो खाना है, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आप खाओगे तो वो हमारे बॉडी में फिर स्टार्ट अफेक्टिंग, बिकॉज जो चीज बॉडी का डीएनए जो होता है, जो धरती से उगी हुई चीजें होती है ना, वो उन्हीं को जानता है ऑब्वियसली, बिकॉज बॉडी भी इसी मिट्टी से बनी हुई है। सो जो चीज अर्थ से ग्रो हो रही है, अगर वो बॉडी में जाती है तो बॉडी उसको पहचानती है और वो रिपेयर, मेंटेनेंस, हीलिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मेंटल साइकी भी हमारी क्या रहे अपनी बॉडी को लेके। हम अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज करते हैं। अगर आपने कोई एरेटेड बेवरेज लिया 1 ग्लास भी, इसका मतलब है आप अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो जो फैक्ट्री में बन के आई है, अगर हमारे दिमाग में कंप्लेन्स हैं, अगर आप गूगल सर्च कर रहे हो अपनी बीमारी के बारे में, एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस इन द हेल्थ, है ना। सो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि बॉडी को हम इनेबल करें कि वो हर तरह की डिजीज से फाइट कर सके। देखो, डिजीज कोई बाहर की कंट्रोल तो नहीं कर सकते, है ना। अगर फ्लू का वायरस फैला हुआ है तो फैला हुआ है, कोविड का वायरस जब था फैला हुआ था, लेकिन आप अपने आप को इस बॉडी इस तरह से ला सकते हो कि ठीक है, वो कोविड के वायरस भी हमारे अंदर गया, लेकिन आपकी बॉडी ने झट से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी और आपको सफरिंग नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये हमको करना पड़ेगा इस तरह से, और हमारी बॉडी की जो शक्ति है उसको इनेबल करके रखना पड़ेगा अंदर, जो भी इन्फेक्शन फाइट करने की, हेल्दी रखने की, रिपेयर रखने की, मेंटेनेंस रखने की, वो सारी। So it says that miracles are not contrary to nature. Miracles is equal to nature. Okay? But we don't know about nature. We don't know about nature, right? कि किस तरह से हम लोग बिना बात के हर चीज के लिए, मतलब कल मैं सुबह उठी थी क्योंकि हम परसों सोए नहीं थे तो बहुत ज्यादा, तो सुबह उठी थी तो इतना तेज मेरा सिर दर्द हो रहा था. In spite of the fact I'm sharing my room with Poonam, she did not even know that I was having a splitting headache because I did not want to give it an energy. Okay, I didn't want to give it any energy. अब इतना तेज मुझे ऐसे लग रहा था फट रहा है. मैंने कुछ नहीं, बाहर में गई, मैंने नेचर से बात करी, मैंने डीप ब्रीदिंग करी, खूब सारी ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है. एंड आई सेड थैंक यू यूनिवर्स फॉर इंस्टेंटली हीलिंग माय बॉडी. ठीक है, 2-3 बार बोलती गई थैंक यू फॉर इंस्टेंटली हीलिंग माय बॉडी, क्योंकि मैं टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली वेकेशन पे है तो टाइम नहीं होता है टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना. सो अपने आप वो डीप ब्रीदिंग कर करके यू विल नॉट बिलीव, इट डिड नॉट टेक इवन 20 मिनट्स कि मेरा स्प्लिटिंग हेडेक बिकेम एब्सोल्युटली ओके एंड वी हैड अ डे ऑफ द ब्लास्ट, यू नो, लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल. सो अगर हम अपनी बॉडी को इनेबल करेंगे, हम पॉजिटिव थॉट्स देंगे, हम थैंक यू बोलेंगे, अपने आप जो नेचुरल फ्लो ऑफ हीलिंग है हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी लोगों की ठीक होती है. ठीक है, दिस इज व्हाट मैंने आपको पहले बताया था. इनफैक्ट मैं कल परसों हम बात भी कर रहे थे कि वो ब्राजील की वो जो जगह जो मैंने आपको बताई थी, वहां पे सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते हैं. मतलब वो ब्राजील के सबर्ब्स में बना हुआ है, कंट्री साइड में बना हुआ है. इट्स नॉट लाइक रिजॉर्ट, ऐसी कॉटेजेस है. वहां पे वैसे पेशेंट जाते हैं जिनको बहुत क्रॉनिक इलनेस होती है, मतलब जब, है ना, मतलब ठीक ही नहीं हो रही होती है, बहुत लंबी बीमारियां, बहुत सालों से ब्लड प्रेशर, बहुत सालों से कुछ ना कुछ चल रहा होता है उनका, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या कुछ. तो वो वहां पे उस रिजॉर्ट में रहने जाते हैं और वहां पे पता है क्या करते हैं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग. एक तो आपको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका फोन गया, बिकॉज ये भी एक बीमारी होती है ना फोन की, तो वो फोन चला गया. आपको वहां फोन रखना कोई अलाउड नहीं होता, वैसे वहां नेटवर्क ही नहीं होता क्योंकि वो जंगल टाइप के एरिया में बना हुआ है. ठीक है, और इतने पेड़ पौधे, इतनी हरियाली आसपास है वहां पर, दैट हमको पता है ना कि पेड़ों से ही निकलती है ऑक्सीजन. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो पेड़ खींच लेता है,
और वो ऑक्सीजन देता है जो हम इनहेल करते हैं। तो जितना ज्यादा पेड़ पौधे और हरी भरी जगह और जो घर के आसपास आपके पार्क्स वगैरह हैं वहां जाओगे तो वहां पूरा ऑक्सीजन भरा रहता है। और कुछ कुछ पेड़ होते हैं ना, अशोक ट्री और वो ट्री जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। वैसे कहते हैं ना, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पेड़ और सुबह ऑक्सीजन देते हैं। अब वहां पे जाके सिर्फ डीप ब्रीदिंग होती है, यानी कि सेलुलर लेवल पे आप इतनी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो तो सब कुछ ऑक्सीडाइज हो जाता है, बॉडी की हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो वही काम हम रोज क्यों नहीं कर सकते? हमको क्यों जरूरत है ब्राजील जाने की? सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए? हम बीमारी अपने आप ठीक कर लेंगे। हम रोज गहरी लंबी सांसें लेंगे थोड़े दिन, थोड़ी देर 15 मिनट भी अगर आप लोगे तो आप देखना आपके हेल्थ में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट पॉजिटिव होगे, चिंता के साथ नहीं। ठीक है, तो यही सेंट ऑगस्टीन का कोट है कि नेचुरल फ्लो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी है उसको हमको एक्टिवेट करके रखना है। और इसमें ये लिखा हुआ बड़ा अच्छा सा कोट है ना ये वाला रोंडा बर्न का, कि मतलब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इट इज अ बर्थ राइट, वो ये वाला टर्म यूज कर रही है। वी शुड फील हेल्दी, एनर्जाइज्ड एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं चाहिए हमको, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। अब हो सकता है कई लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा फिगर, बड़ी अच्छी बॉडी, ऐसा लगता है वाह यू नो यू लुकिंग सुपर्ब, बट हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस है क्या? मेंटल हेल्थ कैसी है? मेंटली भी हमको बहुत हेल्दी होना है। तो फिजिकली हेल्दी होना है, हमको मेंटली भी बहुत ज्यादा हैप्पी होना है। ठीक है, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अकॉर्डिंग टू रोंडा बर्न हियर। सो इसलिए मतलब अगर हम किसी भी इलनेस से या डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उसका आंसर होता है ग्रैटिट्यूड। जैसे रोंडा बर्न ने इसमें लिखा है, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज आई नो टू मैजिकली बिगिन एक्सपीरियंसिंग द फुल स्टेट ऑफ हेल्थ यू आर मेंट टू हैव इन योर बॉडी एंड माइंड। सो सिर्फ बॉडी की हैप्पीनेस, मतलब अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अब बॉडी आपकी बड़ी अच्छी है, बहुत हेल्दी कुछ, लेकिन दिमाग में बहुत गुस्सा रहता है या इरिटेशन होती है या ग्रज रहती है किसी से, तो फिर वो तो गुड हेल्थ नहीं कहलाता। ठीक है, गुड हेल्थ की डेफिनेशन ही यही होती है, that it's a complete state of physical, mental, emotional and social well-being and not just the absence of illness. ये WHO की डेफिनेशन है। It's a complete state of physical, mental, emotional and social. That means your ability to accept others just the way they are. Okay, that's social health. So वो भी हमारी अच्छी होने, तब जाके अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप हेल्दी पर्सन कहलाते हो। अगर आप किसी भी, अगर आपको अपने पड़ोसी से नहीं बन रही है, यू नो you're constantly grudging about them, तो फिर भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं कहलाती है अकॉर्डिंग टू WHO. So that is how it is. This is how we have to change. We have to become beautiful people who are channels of this universal force, experiencing the best of money, abundance, prosperity, the best of health, great successful career, and having enough money to do all the things that you desire to do. इसी को बोलते हैं एक अच्छी जिंदगी, कि हर चीज की फ्रीडम है आपको। फ्रीडम टू चूज मनी, फ्रीडम की हेल्थ आपकी इतनी बढ़िया है कि कल आपको कोई बोले कि वहां जाना है, यू नो उस कंट्री में जाना है, तो आप बोलो हाँ हाँ जा सकती हूँ। आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी दवाइयाँ कैसे होंगी, मेरा डॉक्टर तो वहां पे होगा नहीं, मैं कैसे करूंगी, ऐसे करूंगी। ठीक है, पैसे का फ्रीडम होना चाहिए कि जहां खर्चा करना है आप बिना देखे आराम से खर्च कर पाओ। राइट, सो इस तरह का जब हो जाती है हमारी जिंदगी, उसी को तो हम भरपूर जिंदगी बोलते हैं ना, अ फुल ऑन, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। सो इसीलिए हमको अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत रखने की, और ग्रैटिट्यूड एक्चुअली इज द फास्टेस्ट वे। यू विल सी दैट जैसे आप ब्लेसिंग्स करने लग जाते हो ना हर चीज में, जैसे कल वाले चैप्टर में था ना, फाइंड द नगेट्स ऑफ गोल्ड। नगेट मतलब छोटे छोटे गोल्ड निकाल के रखो, उसमें से भी गोल्ड, इसमें से भी गोल्ड। नेगेटिव्स तो बहुत मिल जाएंगे, नेगेटिव ढूंढते रहेंगे तो हमारी सेहत पे उसका असर आएगा, है ना। 80% ऑफ द बीमारीज जो होती है ना वो साइकोलॉजिकल उसका सोर्स होता है, मतलब उसका सोर्स मेंटल होता है। तो इसलिए हम क्यों करें, हम बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, यहाँ पे ये जो समझाया हुआ है। और इसमें अगर हमको पढ़नी है मिरेकल स्टोरीज हेल्थ की, तो पूरी भरी पड़ी है इसमें, www.thesecrettv.stories, उसमें सब लोगों का एक्सपीरियंस। इसीलिए लिखा है दैट ग्रैटिट्यूड अगर हम करेंगे ना तो उसकी जादुई शक्तियां
पूरी यूनिवर्स के फोर्सेस दे स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड इन आवर लाइफ और वो अपना काम करने लग जाते हैं। मतलब समझ लो कि कोई डॉक्टरों के औजार, जैसे हम लोग भी अपने फील्ड में यही बोलते हैं दैट you know your body is the hospital and you have enough chemicals in your body which work like medicine. So medicines और hospital आपकी body के अंदर ही है, आपको कहीं बाहर से जाने की जरूरत नहीं होती है। So gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. तो बस थैंक यू बोलना होता है और काउंटलेस स्टडीज रिसर्चेस सबने ये बोला है, लेकिन थैंक यू के साथ साथ इसीलिए लिखा था ना ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मैजिकल पावर। ओके, वन ऑफ द मैजिकल पावर। बाकी की पावर क्या है? अगर हमको हेल्थ अच्छी रखनी है तो गुड बॉडीली केयर। ठीक है, अपनी बॉडी को पनिश मत करो मैदा खा खा के। सो वी डोंट गिव बिस्किट एंड रस्क, सारी मैदा वाली चीजें। आप मैदा आपकी बॉडी पहचानती नहीं है, आप बस अपने मुंह के स्वाद के लिए खाते हो। ठीक है, आपकी बॉडी एक हेल्दी कुकी को भी नहीं पहचानती है। वो कुकी धरती से नहीं निकला हुआ है, वो पहले मैदा बना था फिर उसके बाद ये होता है। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ओट्स कुकी एंड होल ग्रेन कुकी, है सब बकवास होता है। ठीक है, सब मैदा से बनते हैं। सूजी का रस, सूजी से रस नहीं बन सकता, सूजी बिखर जाती है। ठीक है, उसको बेक नहीं कर सकते आप, वो मैदे का रस होता है। हाँ ठीक है, 10% सूजी डाली होगी। तो गुड बॉडीली केयर भी बहुत जरूरी है। आगे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। तो इसलिए कोई भी केमिकल वाली चीज, आपका पास्ता सॉस, आपका पिज्जा सॉस, आपका टमेटो केचप, व्हाइट शुगर, ये सब लेते रहेंगे, बीमार रहेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी इनको जानती नहीं। बॉडी को बड़ी मुश्किल होती है, जो चाय में चीनी होती है ना, उसको भी टॉलरेट करने के लिए उसके इतने सेल्स में इंपैक्ट पड़ता है। जिस सेल की लाइफ 120 दिन होती है ना, वो 100 दिन में ही मर जाता है बॉडी में, अगर आप चीनी देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे इस तरह से। इसीलिए गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन, गुड बॉडीली केयर में आपकी एक्सरसाइज भी आती है। बॉडी बनी ही हुई है कि बहुत मतलब उसको यूज किया जाए। आपके ऑर्गन्स, आपके जॉइंट 360 डिग्री पूरे टर्न हो जाते हैं। क्या हम उनको करते हैं? हमको जमीन पे अच्छे से बैठ के बिना सपोर्ट लिए उठ सकते हैं 5 बार? कि जमीन पे बैठो आलती पालती मार के एंड देन स्टैंड अप अगेन विदाउट एनी सपोर्ट एंड देन अगेन सिट। नाउ इट्स कॉल्ड फिजियोथेरेपी, जो नॉर्मल चीज हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो बॉडी हमने स्टिफ कर ली है ना, अब हम उसको धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे खोलने का मतलब है कि आप अपने जॉइंट्स, नेक की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, एंकल को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ये सब साथ साथ करते रहें। ठीक है, ये साथ साथ करते रहेंगे, अपने आप वी विल सी दैट आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी एकदम से, उनमें ऑक्सीजन पहुंचेगी क्योंकि आप मूव कर रहे हो। सो गुड बॉडीली केयर जरूरी है, अपनी बॉडी की सफाइयां रखनी जरूरी है, न्यूट्रिशन क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब जरूरी है। और फिर उसके साथ इनिशियली यू मे नीड अ मेडिकल असिस्टेंस, इजंट इट? समटाइम्स अगर बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन है तो फिर मेडिकल असिस्टेंट पेन किलर्स लेने पड़ेंगे, विच इज ओके। ठीक है, धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगे, बट वो मेडिकल असिस्टेंस टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपने आप को हील करने की अंदर से कोशिश कर रही है ना। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती, कोई भी बीमारी जो अपने आप बॉडी ठीक नहीं कर सकती, विच इंक्लूड्स कैंसर। ठीक है, वो भी बॉडी इनेबल करके ठीक करती है। मतलब हमारे डीएनए जो होते हैं ना, वो अलग तरीके से बने होते हैं। उसमें बोलते हैं कि वो मतलब फिक्सिंग डीएनए होते हैं, रिपेयर कर देते हैं वो अपने से। डीएनए रिपेयर मतलब डीएनए रिपेयर जीन्स बोलते हैं उनको। तो वो जीन्स हमारे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जब हम धरती पे जन्म लेते हैं, उसको बोलते ही यही है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, डीएनए रिपेयर जीन, प्रोटो ऑन्को जीन, ये सारे जीन्स के नाम है जो हमारी बॉडी के अंदर फिटेड हैं, प्री इंस्टॉल होके आए हैं हम लोग इस धरती पे। तो वो डीएनए में कुछ गड़बड़ भी होगी, आप मतलब कोई भी ऐसे एरेटेड बेवरेज जो कलरफुल वाले आते हैं अलग अलग से, मैं ब्रांड नेम्स तो नहीं ले सकती, बट वो फिजी ड्रिंक्स जो हम लेते हैं और लेते हैं, सो वो सब ले लेके आपके डीएनए, मल्टीपल डीएनए एक दिन में मरते हैं, लेकिन बॉडी इनको रिकवर कर देती है। ठीक है, बट हमने थैंक यू नहीं बोला है कभी, हमें पता नहीं है ना वो वैसे करते हैं। अगर आप 1 महीने से डॉक्टर के पास नहीं गए हो, आपने थैंक यू बोला कि बॉडी में, इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आपने सब कुछ अच्छा ही किया है। आपने थैंक यू बोला बॉडी को कि वाओ, थैंक यू सो मच फॉर मेंटेनिंग माई हेल्थ सो गुड, है ना। सो इस तरह से दिस इज व्हाट इट इज। सो इसमें है कि नेगेटिव फीलिंग्स, वरी, फ्रस्ट्रेशन और फियर अपनी हेल्थ को मत दो। ठीक है, विच इज आई थिंक हमारी ऋतु सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका।
पूरे टाइम वो वीडियोस बनाती आ रही है, पूरे टाइम सबको हंसाती रहेगी। जो उसने डांस किया था मेरे बर्थडे पे, उस दिन तो कर नहीं पाई थी क्योंकि उसको उस दिन जस्ट कीमोथेरेपी मिली थी, तो मेरी बर्थडे पे वो नहीं कर पाई थी। बट बाद में उसने जो डांस किया था, जो शिबा ने शेयर किया था हम सबके साथ में, कोई कह सकता है उनको ऐसी बीमारी और बड़ी मस्ती से लाइक कितना हंसना, बच्चों के सेशन में वो फनी सा वीडियो बना के पोस्ट करना, तो इसमें स्कोप ही नहीं है ना। अगर नेगेटिव कोई होगा तो वो सब चीजें थोड़ी कर सकता है। अगर नेगेटिविटी है, या तो एक हो सकता है, ओ गॉड मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी कीमो, गॉड ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। आधा तो इंसान डर के ही वो हो जाता है ना। बट सी द वे शी इज हीलिंग, है ना, शी इज हीलिंग लाइक दिस ओनली बिकॉज उसकी मेंटालिटी अपने मजे कर रही है, बहुत वो कर रही है। मैं उसको ये बोलती हूँ कि मैंने कहा कि जब तुम्हारा ऋतु जब भी कीमो बॉडी के अंदर जा रही है ना, समझ लो एक बूंद अमृत की गिर रही है, अमृत की बूंद हेवन से गिरती जा रही है, और वो बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर रही है। एंड दिस विल बिकम सच अ गुड मेमोरी इन योर लाइफ दैट आप जिंदगी को इसकी वजह से रोशन कर दोगे। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आता है तो आप जिंदगी को उसकी वजह से रोशन करते हो। ठीक तो होना ही है क्योंकि यूनिवर्स ने उसको चूज किया है कि ये एक्सपीरियंस दे के उसको रिकवर करके, सो दैट शी कैन स्प्रेड दैट वर्ड्स एंड शी कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड गिविंग देम होप एंड हैप्पीनेस एंड उनकी अपने तरीके से सेवा कर पाए। तो शी इज द चोजन वन। हम सबको यूनिवर्स चूज करते हैं अलग अलग एरियाज में कि इस तरह से हमको लोगों को एम्पावर करना है। तो सोचो वो कितने लोगों को एम्पावर कर पाएगी ऋतु अपने एक्सपीरियंस से, है ना। सो बट अगर वरी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, डर लग रहा है, चिंता हो रही है अपने हेल्थ की कि कल क्या होगा, मैं जिंदा बचूंगी नहीं बचूंगी, नो, फिर हीलिंग नहीं होती है। वो जितने भी हीलिंग रिपेयरिंग की चीजें होती है ना, शट डाउन मोड पे चली जाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है ना, इट विल हैव द ऑपोजिट इफेक्ट, रादर इट विल रिड्यूस हेल्थ। मतलब वो ट्यूमर है वो और बड़ा होता जाएगा, मतलब उल्टा इफेक्ट होता है इसका, है ना। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है टू इंक्रीज योर हेल्थ। अगर हेल्थ में बहुत अच्छा चाहिए तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अच्छी फीलिंग मतलब ग्रैटिट्यूड को इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। सो इसीलिए नो गूगल सर्चिंग, नथिंग। सो इसमें लिखा हुआ है, एंड व्हेन देयर इज समथिंग यू डोंट लाइक अबाउट योर बॉडी, यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। का बार बार हम बोल रहे हो मेरा बॉडी वेट नहीं कम हो रहा है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरी आंखें इतनी छोटी हैं, मुझे उनको बड़ा करना पड़ता है, मेरी नाक ऐसी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मेरे हाइट ऐसी है, मेरे वेट, मतलब ये सब बॉडी में ही आता है। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में जरा भी नेगेटिव चीजें दे रहे हैं तो इट ट्रांसलेट्स इनटू डिजीज। इसलिए हम बहुत प्राउड होंगे अपने आप को। हम सब यही ना, मतलब एक बुके में अलग अलग रंग के फ्लावर्स हैं, तो कितना सुंदर वो बुके लगता होगा। सोचो सारे लोग एक जैसे ही दिखते, सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, लंबे लंबे, पतले पतले, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, सो एक्सेप्टिंग योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर। सो अगर आपको कोई बॉडी का पार्ट नहीं पसंद है अपना, कि मेरे हिप्स बहुत बड़े हैं, मेरे पैर बहुत लंबे हैं, ये सारी चीजें, इसका मतलब है कंप्लेनिंग, यू आर अ कंप्लेनर। इसमें है यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम अपनी बॉडी का ध्यान रखना, कम खा के बहुत जरूरी है। इतना खाते हैं हम लोग, हमें इतने खाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा खाओ, खूब मूवमेंट करो। बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हो तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा खा सकते हो, खाना कम करना है। कोई कुछ नहीं रखा, ये 2 मिनट का स्वाद है चीनी वाली खाने और पुडिंग, और ये ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके। ठीक है, ये भी ग्रेटिट्यूड का ही पार्ट होता है। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हो ना, तो अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं करोगे। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। एंड कम खाओ, कम खाओ, कहते हैं ना, कम खाओ नहीं तो गम खाओ। सो इसीलिए सो कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी और एक्सपीरियंस और ज्यादा हेल्थ एट रिस्क चला जाता है। बिकॉज आई एम स्पेशली इलैबोरेटिंग दिस चैप्टर एंड आई थॉट आई टेक इट ओनली बिकॉज दिस रीजन दैट ये वैसे भी मेरा यूएसपी है, क्योंकि दिस इज माई सोर्स ऑफ लिविंग ऑल्सो। मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा ये सोर्स ऑफ लिविंग ही यही है। सो दिस इज समथिंग आई सी इन पीपल। जो लोग भी खुश रहते हैं ना, उनकी बीमारियां ऐसे झटाक से ठीक होती है, और वही हैवीनेस, बर्डन जो दिमाग में होता है, पूरे टाइम कंप्लेनिंग, उनकी बीमारियां ठीक है, ये वाली ठीक हो जाएगी, हम ठीक कर देते हैं, दूसरी हो जाती है। ब्लड प्रेशर ठीक किया, बीपी की मेडिसिन इतनी मुश्किल से 0 तक लेके आए, ठीक है, 50 mg की चल रही थी, 0 तक लेके आती हूँ, मतलब खत्म कर देती हूँ मेडिसिन, फिर पता लगता है एक और बीमारी हो जाती है कुछ और। सो इस तरह से चिंता, ये सब तो आदत होती है। हाँ जी मोहित जी, प्लीज कंटिन्यू।
Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Step 1. Health you have received. Past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2. Health you are continuing to receive. Present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your legs, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each. Step 3. Health you want to receive. Future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research that disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we cannot make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings to we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that
oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for the excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Quote, natural forces within us are the true healers of disease. Unquote, Hippocrates, circa 460-circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16, magic and miracles in health. Point number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Point number 3, think about 5 functions of your body that are well and one by one, give thanks for each one. Point number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health, then give thanks for this ideal state. Point number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Mohit ji. Thank you. Very important chapter this is. So आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हमको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस तरह से करना है. सो अगर हेल्थ में जनरली कहते हैं कि हेल्थ बढ़ती इसीलिए क्योंकि पास्ट में बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए नेगेटिविटी होल्ड करी हुई थी. मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, दिन रात सुबह शाम. इसीलिए ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, इसमें करंट स्टेट में आपको काम करने से अच्छा होता है कि पीछे पास्ट में जाओ. तो इसमें हमको पास्ट में जाके बचपन से लेके मे भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, 3 ऐसे इंस्टेंसेस हमको चूज करने हैं. और मन में करने वाली प्रैक्टिस है. आपको चाहते हो आप लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मन में कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, जैसे भी. तो आप सोचो कि कौन सी वो 3 सिचुएशंस थी जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी. मे बी आप किसी वेकेशन में गए थे, खूब पहाड़ चढ़ रहे थे, वहां पे खूब घूम रहे थे, चल रहे थे, शिमला गए थे मे बी, और वहां ऊपर नीचे पहाड़ों पे चलना, वो हो सकता है. हो सकता है कि आप अपने नानी हाउस या दादी हाउस गए थे अपने समर वेकेशंस में, वहां पे आपने बड़े मजे किए थे, खूब घूमे फिरे, कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी ऐसे कर रहे थे. आपने सोचा भी नहीं कि मुझे इतना खाना है. आप 10-10 पूरी एक बार में इकट्ठे खा लेते थे. वो भी तो स्टेट ऑफ गुड हेल्थ होती है ना, जब 10 पूरी खा लेते बचपन में, है ना. सोचना नहीं पड़ता, मतलब आप जो खा रहे थे आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही थी. तो वैसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज. देन थर्ड, तो उसके बाद थर्ड कोई ऐसी चूज करो, ऐसी कोई कि कभी स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन था और उसकी 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे और आपको इतनी एनर्जी थी
वो डांस की प्रैक्टिस कर करके, या फिर कोई स्पोर्ट्स मीट थी उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो पास्ट में ऐसी 3 हमको सोचनी है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। that thank you that that I could rehearse my dance sequence every day for 1 month and then perform such a wonderful dance when I was in grade 9. फिर उसके बाद सोचो that thank you universe that we went for a vacation to wherever you went to, maybe Spain, maybe शिमला, maybe दार्जिलिंग, जहाँ पे आपको खूब चलना पड़ा, आपने खूब अच्छी हेल्थ एंजॉय की। फिर थर्ड सिचुएशन कोई ऐसी सोचो कि जब बहुत हेल्थ अच्छी एंजॉय की थी, मे बी रोज बैडमिंटन खेलने जाते थे, रोज वो करते थे या स्विमिंग करते थे। तो ये 3 हो गई पास की। तो सबसे पहले हम पास से शुरू करेंगे। तो अब हमने जो गड्ढे पास में किए थे उनको हमने भर दिए थैंक यू बोल के। अब हम 5 सिचुएशन प्रेजेंट में लेके आएंगे। प्रेजेंट बॉडी के फंक्शंस जो आपके अच्छे काम कर रहे हैं उनको आपको थैंक यू बोलना है। दैट थैंक यू एक्सक्रीटरी सिस्टम की बहुत अच्छे से मैं जो खाती हूँ वो मेरे एब्जॉर्ब हो जाता है, जो नहीं खाती वो मैं बाहर निकल जाता है। थैंक यू टू माई एक्सक्रीटरी सिस्टम। Then thank you to your reproductive system, could be thank you to your heart, कितने अच्छे से circulatory system चल रहा है आपका। Thank you to the brain and the mind which is working so perfectly, आपको चीजें याद रहती है, आपको जो भी चीज है, ठीक है। तो जो भी respiratory system के लिए इतनी आराम से हम सांसें लेते हैं। तो this is how like 5 current functions जो body के हैं उनको thank you बोलना है। और फिर चूज करना है कि अब आपकी बॉडी में क्या ऐसी कंडीशन है जो आप फ्यूचर में ठीक करना चाहते हो, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। अगर किसी को बार बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको ये बोलना है, मतलब विजुअलाइज करना है मिनिमम 1 मिनट के लिए कि आप बिल्कुल आपकी मतलब वो अस्थमा का कोई बिल्कुल चला गया है। फिर अब आप क्या क्या चीजें कर पा रहे हो, आप दौड़ पा रहे हो, आप जिम कर पा रहे हो, आप पहाड़ों पे चढ़ पा रहे हो, आप बहुत आराम से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अभी आपको एस्थमेटिक लगता है, इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है या कोई भी चीज फॉर दैट मैटर। सो फील दैट सेंस ऑफ फ्रीडम इन द बॉडी, जो भी बॉडी पार्ट है, और उसको बोलो थैंक यू फॉर माई परफेक्टली वर्किंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, थैंक यू टू माई लंग्स, थैंक यू टू माई नी, मतलब नोज से ही जा रहा है ना अंदर सांस। सो थैंक यू टू माई रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स कि इतने अच्छे से, इतने आराम से मैं आराम से ऑक्सीजन ले पाती हूँ विद ईज, है ना। तो वो वाला। और फिर 1 मिनट विजुलाइज कर लिया, और उसको विजुलाइज करने के बाद थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू फील करो, ग्रेटिट्यूड, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ये आज की प्रैक्टिस है। सो 3, 5, 1, इट इज नॉट 5, 3, 1, ठीक है, ये गलती मत करना। इट इज 3, 5, 1, 3 पास्ट, 5 प्रेजेंट, 1 फ्यूचर इज इक्वल टू 9। 9 is 3 times 3 the number of creation. हमको ये पता है ना, 3 is the number of creation. So 9 is a very powerful number, और वो क्रिएशन की स्पीड को बहुत एक्सपीडाइट कर देता है, फास्ट कर देता है, रॉकेट लग जाएंगे आपकी क्रिएशन की स्पीड को। वो इतना पावरफुल नंबर होता है 9, क्योंकि 9 हमें पता है ना, नवरत्न होते हैं, कहते हैं ना नवरत्न होते हैं, नव दुर्गा के 9 रूप होते हैं, हमारे प्लैनेट्स 9 होते हैं। तो इस तरह 9 और 3 का 3 गुना है वो। तो 3 अपने आप में एक नए क्रिएशन की पावर होती है, और ये 3 times 3 है। तो इसीलिए हम 3, 5, 1, 9 टाइम्स ये कर रहे हैं, और ये हमारी प्रैक्टिस है। आप एज आई मेंशन, आप लिख के करो, आप बोल के करो, जैसे भी आपको करना है वैसे करो, बट ये प्रैक्टिस करना। और अगर हेल्थ में ज्यादा चैलेंज आ रहा है तो ये रोज प्रैक्टिस करना, 3, 5, 1। सो ये वाला है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो हमारा है, वी आर वेकिंग अप विद ग्रैटिट्यूड, काउंट माय ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग के साथ हमारी दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद 10 ब्लेसिंग, हम नॉट 10 ब्लेसिंग्स, रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपना मैजिक रॉक, छोटा सा पत्थर अपने मुट्ठी में पकड़ते हैं, और हम पूरे दिन भर को स्कैन करके सारी जो चीजें होती है उनको चूज करते हैं, गोल्ड के नगेट्स ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में से, अपने दिन में से, है ना। तो दिन में से सारे गोल्ड के नगेट्स ढूंढ के उसमें से बेस्ट चीज सोचो कि क्या हुआ था, और उसके लिए थैंक यू बोल के फिर आप सो जाओ। तो आप उठ रहे हो ग्रैटिट्यूड में, सो रहे हो ग्रैटिट्यूड में, और बीच में हमको ये प्रैक्टिस मिली हुई है, और इसकी वजह से आप देखना आपकी जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी। आप मतलब यंग दिखने लग जाओगे, बहुत सारी ऐसी चीजें, बाल सुंदर हो जाएंगे, आंखों की रोशनी आ जाएगी वापस, इस तरह से, मतलब यू विल सी मेनी फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस हैपनिंग। जो चीजें आपको पहले बॉदर करती थी अब वो नहीं करेंगी, बिकॉज यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली फ्रॉम इनसाइड, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस।
And now we go to the next book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, जिसमें हम fear वाला चैप्टर कर रहे हैं। और कल हमने बहुत सुंदर 2 एक्सपीरियंसेस 2 रियल ह्यूमन बीइंग्स के देखे थे, और सेम सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं। किसी भी चीज का फियर है, कल सेल होगी कि नहीं होगी इसका फियर है, स्टाफ आज है कल छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा इसका फियर होता है, सेल होगी कि नहीं होगी इसका फियर है, पैसे बिजनेस क्या हमेशा अच्छा ही रहेगा उसका फियर है, आगे जाके क्या होगा अपनी हेल्थ के बारे में इसका फियर है। तो हमने कल 2 एग्जाम्पल दे रहे थे, आज भी 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल लोगों के, तो हम बहुत रिलेट कर पाएंगे उनके साथ। सो या मीतू, यू रीडिंग टुडे? Yeah. Yeah. He dismissed himself. The general manager of an organization told me that for 3 years he feared he would lose his position. He was always imagining failure. The thing he feared did not exist, save as a morbid, anxious thought in his own mind. His vivid imagination dramatized the loss of his job until he became nervous and neurotic. Finally, he was asked to resign. Actually, he dismissed himself. His constant negative imagery and fear suggestion to his subconscious mind caused the latter to respond and react accordingly. It caused him to make mistakes and foolish decisions, which resulted in his failure as a general manager. His dismissal would never have happened if he had immediately moved to the opposite in his mind. So it talks about this person. ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, जैसे बहुत अच्छी जॉब या बिजनेस कुछ अच्छा चलता है तो ये रहता है कि नहीं हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, तो ये इतना फेयर होता है। तो इसमें इस पर्सन के बारे में बात है जो जनरल मैनेजर था एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको बार बार ये डर रहता था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, बस वो अपने फेलियर को इमेजिन करता रहता था। कई लोग होते हैं ना बहुत ही रेनी डे के लिए सेव करके रखते हैं। अरे क्यों रेनी डे के लिए सेव करके रखना है? रेनी डे के लिए सेव करना मतलब जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे उसके लिए मैं सेव करके रख रहा हूँ। आप एंजॉय करो ना, आज कल किसी ने देखा है? तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ सेविंग्स प्लान विद एवरीवन, ओके, सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट अभी सारे पैसे जोड़ जोड़ के रखना कल के लिए, आज का क्या, आज कैसे एंजॉय करोगे फिर अगर सारे पैसे जोड़ जोड़ के रखने की? नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, नहीं हम वो नहीं करेंगे, अरे वहां तो बड़ा खर्चा हो जाता है, वो ऐसे करेंगे। व्हाट्स द पॉइंट? हु सीन टुमारो? आप अच्छे से आज एंजॉय करेंगे ना, तो उसकी वजह से जो इमोशनल एक्सपेंशन होती है हमारी, उसकी वजह से और बरकत हमारी जिंदगी में आती जाएगी, बिकॉज हर फ्यूचर डिजाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर राइट नाउ। इसीलिए तो पावर ऑफ नाउ पे किताबें लिखी हुई हैं कि अभी जो मोमेंट है ना, आप उसको एंजॉय और सेवर करो। आप अपने आप देखना कि 2 दरवाजे और खुलेंगे जिंदगी के, ठीक है, जहां से खूब पैसा आएगा, फिर आप और एंजॉय करोगे, अच्छी अच्छी जगह जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, जो करोगे, जो भी आपको खरीदना है वो खरीदोगे, जो आप हमेशा सोचते थे। अब आपने वो 2 दरवाजे खुले, वहां से और पैसा आया, उसके बाद 4 और खुल जाएंगे। इस तरह से लाइफ आगे बढ़ती है। कंजूसी करेंगे तो वो माइंडसेट है कि नहीं मुझे पैसे नहीं खर्च करने, मुझे जोड़ के रखने कल की प्रॉब्लम्स के लिए। आपको कल की प्रॉब्लम तो आएंगी ना, क्योंकि किसने क्रिएट किया था? माइंड में। हर चीज जो आपको जिंदगी में बाहर दिख रही है ना, वो माइंड में क्रिएटेड होती है, ठीक है। तो इस पर्सन को ये था मेरी नौकरी चली जानी है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह कर करके इसको इतने ज्यादा ये एंजाइटी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, ठीक है। फाइनली इसके बॉस ने इसको रिजाइन करने को बोला। अब उसने खुद को अपने आप को अपनी पोजीशन से डिसमिस किया था, बॉस ने नहीं किया था। हम खुद करते हैं, कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मुझे सैलरी कम मिलती है, मुझे सैलरी कम मिलती है, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे पैसे और चाहिए, मुझे पैसे और चाहिए। नो, ये बोलने के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं, और वो बॉस पैसे नहीं देता है, यूनिवर्स से आते हैं। इट्स नॉट वन पर्सन गिविंग कि आपको जॉब से ही पैसे आते हैं, नहीं। आप बस यूनिवर्स पे बता दो दिस इज द अमाउंट, सपोज आपको 3 लाख रुपए चाहिए हर महीने कंसिस्टेंटली, सो आप ड्रीम लिस्ट में डाल दो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम रिसीविंग ₹3 lakhs कॉन्स्टेंटली एवरी मंथ विद ईज एंड जॉय। दैट्स इट, ठीक है। हमको नहीं सोचना होता कि यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे, वहां से आएंगे, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं।
तो इस तरह से इस पर्सन के साथ क्या हुआ, जो जनरल मैनेजर था, कि बार बार ये फियर कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। अब उस बिकॉज उसने वो अट्रैक्ट किया था, जिसके कारण अपने आप सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो अजीब सी सिली मिस्टेक्स करने लगा अपने काम पे और बहुत ही स्टूपिड डिसीजंस बनाने लगा, जो इसमें लिखा हुआ है ना, फूलिश डिसीजंस। ही स्टार्टेड मेकिंग फूलिश डिसीजंस, और जिसके कारण ऑब्वियसली उसका काम नोटिस में आ गया कि इतना बेकार काम कर रहा है वो, और जिसके कारण उसको ही हैड टू बी रिमूव फ्रॉम वर्क, यू नो, लाइक उसको। सो हम क्रिएट करते हैं जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसके कारण हम क्रिएट करते हैं उसको। तो हम एक और एक्सपीरियंस पढ़ देते हैं बिफोर वी मूव, आई मीन लाइक वी शट फॉर टुडे। हाँ जी। They plotted against him. During a recent world lecture tour, I had a 2-hour conversation with a prominent government official. He had a deep sense of inner peace and serenity. He said that all the abuse he receives politically from newspapers and the opposition party never disturb him. His practice is to sit still for 15 minutes in the morning and realize that in the center of him is a deep, still ocean of peace. Meditating in this way, he generates tremendous power, which overcomes all the manner of difficulties and fears. Sometime previously, a colleague called him at midnight and told him a group of people was plotting against him. This is what he said to his colleague: I am going to sleep now in perfect peace. You can discuss it with me at 10 a.m. tomorrow. He said to me, I know that no negative thought can ever manifest except I emotionalize the thought and accept it mentally. I refuse to entertain their suggestion of fear. Therefore, no harm can come to me. Notice how calm he was, how cool, how peaceful. He did not start getting excited, tearing his hair, or wringing his hands. At his center, he found the still water, an inner peace, and there was a great calm. Yeah, thank you so much, Meetu. So we'll just read these two experiences today. So इसमें एक पर्सन था जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, ठीक है, और बहुत सुपर पावर पोजीशन में था, मतलब जहाँ पे थ्रेट्स आते हैं, यू नो, लाइक दैट वे। सो रोज उसका मतलब उसका पॉलिटिशियंस के साथ वो सब चलता रहता था। तो अब ऑब्वियसली मतलब इतना हाई प्रेशर वर्क था, बट किस तरह उसने अपने माइंडसेट को ऐसा कंडीशन किया हुआ था दैट आई एम ऑलवेज एट पीस एंड दिस यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मी, है ना। तो उसको बार बार ये बोलता था, ही सेड दैट जितनी भी अब्यूज ही रिसीव्स पॉलिटिकली, न्यूज़पेपर के थ्रू और ऑपोजिशन पार्टी से, है ना, द पॉलिटिशियन सीनियर एग्जीक्यूटिव को कितना ज्यादा, ही सेज नथिंग डिस्टर्ब्स मी। फिर एक वो रोज 15 मिनट के लिए मेडिटेट करता था अपने पीस ऑफ माइंड के कारण, और ये अपने दिमाग में सोचता था दैट द सेंटर ऑफ पीस, दैट देयर इज अ डीप स्टिल ओशन ऑफ पीस इन माय हार्ट, इन द सेंटर ऑफ माय हार्ट, ये सोचता था, ठीक है, बार बार, और इस फ्रेज पे मेडिटेट करता था। सो इसमें लिखा हुआ है, मेडिटेटिंग इन दिस वे ही जनरेट्स ट्रेमेंडस पावर, जिसकी वजह से सारी डिफिकल्टीज और फियर उसके बॉडी से, जिंदगी से चले गए थे। और फिर उसके बाद उसका एक दिन कोलीग आके बोलता है कि मतलब मिडनाइट में फोन किया, बड़ा फ्रैंटिक से कॉल करी और उसको बोला कि तुम्हारे अगेंस्ट ना कुछ लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन था रात को मिडनाइट पे बोलता है कि अरे मुझे अभी सोने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परफेक्ट पीस में सोने जा रहा हूँ और मुझसे सुबह इस बारे में 10 बजे बात करना। मतलब ये सोचो कि उसकी सेरेनिटी की स्टेट कितनी डीप थी, है ना, मतलब कितना काम था वो पर्सन। अगर हमको कोई आके बोले कि तुमको ना कोई शूट करने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, उन्होंने प्लॉट बनाया है तुम्हारे अगेंस्ट, तुमको फंसा देंगे, उन्होंने ये सोचा है, तो हम तो एकदम से हमें डर लग जाएगा, और हम उसे पूछेंगे किसने बताया और क्या बताया मेरे बारे में, उनको कैसे पता लगा मैंने ऐसे काम किया था, उनको कैसे पता कि मैं कल कहाँ जा रहा हूँ, है ना, हमारे ये क्वेश्चन होंगे। वो कहता है यार सोने दो, सुबह मैं आराम से पीसफुली सोने जा रहा हूँ, मुझसे सुबह 10 बजे के बाद बात करना जब मैं काम पे आऊंगा। तो इस तरह कर करके उस पर्सन का, ये जो पर्सन था, इसका इतना अच्छा मतलब माइंडसेट था
So he said to me, I know that no negative thought can ever manifest except I emotionalize the thought and accept it. अगर मैंने accept किया है threat को, fear को, तभी वो मेरे दिमाग के अंदर आएगा. मैं अपने दिमाग के अंदर threat को, fear को, worry को नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं देखना वो अपनी जिंदगी में होते हुए, है ना. तो इसलिए उसने बोला, I refuse to entertain the suggestion of fear, therefore no harm can come to. मेरा दिमाग शांत है, मेरे दिमाग में प्यार भरा हुआ है, पीस है, तो मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता. इस तरह से. सो इसमें लिखा हुआ है, नोटिस हाउ काम ही वाज, हाउ कूल एंड हाउ पीसफुल. है ना, कितना ज्यादा. नॉर्मली कितना लोग ट्रबल हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन से. सो दिस इज द रीजन दैट उसकी जिंदगी पूरी काम में बीती. और यूनिवर्स है ना ध्यान रखने के लिए. इंसान थोड़ी किसी का, आपके 5 कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो आपके आसपास होंगे, बट जिस तरह से यूनिवर्स ध्यान रख सकते हैं ना, वैसे कोई नहीं रख सकता. इसलिए मैं कहती हूँ यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. और तरीका ग्रेटिट्यूड एंड लव होता है. ग्रेटिट्यूड, लव, फॉरगिवनेस. ठीक है, दिस इज द ओनली वे कि आप यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो. सो बाकी वील रीड टुमारो, व्हिच इज डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स. बहुत अच्छे अच्छे इसमें एक्सपीरियंसेस हैं. प्रियंका, you want to share something? हाँ जी. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, ma'am, I told you, my elder one, she has written a poem for you. So for many days, I was convincing her कि भैया लिखी है तो सुना तो दे. तो आज finally she got ready कि अच्छा ठीक है, okay, मैं carry कर रही हूँ. So she went to recite it, ma'am. अरे वाह, so sweet. सैटरडे को भी स्कूल है, सैटरडे है ना? Yes, ma'am. अच्छा, सैटरडे को स्कूल होता है आप लोग का? Yes, ma'am. First and third Saturdays. Okay, so first you introduce yourself, beta, to everybody, to all uncles and aunties, and then you can share. Ma'am, I'm Tiksha Vashisht and I'm currently studying in 10th grade. I'm in NK Bagrodia Public School in Dwarka Sector 4. And I love writing poems, I love singing, and I love playing guitar. So the poem that I've written today is called Held My Hand. It goes like this. My eyes were closed, it was dark, so I opened them both. There was still no spark. I was walking on a road with no light. I used to carry a load and walk with fright. Then a day came when she held my hand. I thought I was drowning in the sea, but I was standing on the sand. She took me through. I realized my life was true. She made me smell the roses and showed me skies that were blue. Trees colored with love, the water with gratitude. I felt pure as white and dove. She taught me that I could take a stand. I will never fall. I know how to land. I was reborn the moment when she held my hand. This is so amazing. Beautiful. Thank you. Very Wonderful. beautiful, My beta, God, very you see, we beautiful. see the talent here. Like, you know, Yes. even we Wow, would not be able to Tiksha. write a poem like this. Thank you so much. Excellent, Beta. excellent. God Yeah, bless so you. creative. It's a poem she wrote when she Amazing. started her life of like this routine of gratitude. So इतनी पुरानी इसने poem लिखी हुई थी और finally आज convince हुई. How sweet. to Thank speak. you so much. Wow, Thank you this is so much, ma'am. amazing. Actually, we are blessed because we are with you. Oh no, that's like really amazing. Your family, Shyamji, I think इसके dad Shyamji है, तो वहीं से singing की भी ability आई होगी, talent. हाँ. Yes, yes, Yeah. So Thank you next so much, time, ma'am. next time she can sing for us. Next time, will you be able to sing for us? Okay. I'll try. Yeah, maybe tomorrow. When it's a holiday, we'll expect you to sing for us. You can do a duet with your dad. Maybe next week. Even her brother also sings, ma'am, in the Oh, really? छोटे बच्चों वाला जो हाँ, group he's है, sitting he in the also back sang, seat yeah. out there. He's sitting in the back seat, सारी family sitting Priyanka quietly. actors ही है. Hi. Yes, He plays ma'am. guitar Hi. also, ma'am. Good morning. So I do mean, you he want played to guitar yesterday in children's group. He- अच्छा, UK हाँ, में. I know that then. हाँ, श्याम जी, आपका सारा टैलेंट, आपके Good. सारे जीन और प्रियंका की खूबसूरती इनसाइड आउट वाली सब बच्चों में Thank you, आई है. ma'am. Thank you Thank so you. much, तो ma'am. आप एक डुएट तैयार The कीजिएगा अपनी talent बेटी के साथ में, Sure, ma'am. Sure. है ना? दोनों We आप will, गाइएगा yes. हमारे साथ. वो बोल रही है Sure, इस ma'am. वीक तो वो बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आपकी बिटिया नेक्स्ट वीक फ्री है
Definitely, ma'am. Definitely. We look forward to it. And thank you so Sure. much. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Have a great Bye. day. See you Bye. Thank you, tomorrow. ma'am. Thank you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. I'm Ritu.